Hi everyone and welcome to LPT. So guys, अगर आप एक final year student हो or you are graduating in 2026 and the next plan in your career journey is MBA. So if you guys are planning for the MBA after your graduation and definitely जब आप बात करते हो MBA की तो we talk about the top tier colleges of India, top B schools of India. Definitely no introduction to IIMs, right? IIM A, B, C. Definitely these are some of the dream colleges of a lot of people who are planning to do MBA, right? So when we talk about MBA, so no doubt we talk about IIMs, right? Presently we have 21 IIMs are there. तो इन 21 IIMs से अगर मुझे MBA करना है तो definitely no other option then I have to crack CAT, right? तो in this session guys हम everything समझेंगे about CAT. क्या ये CAT होता है, how the exam structure looks like, how much you have to score to get your dream colleges, and everything will be in detail, right? It will be a complete roadmap ki if you are a beginner just starting from the very beginning, so this session is going to be very helpful to you, right? So first of all बात करते हैं that eligibility, that if you are planning to write CAT 2026, right? तो either आप 2026 में graduate हो रहे हो, right? or you have graduated earlier, तो definitely you are eligible. Also if you are in the final year, right? कि अगर आप 2027 में graduate हो रहे हो, right? If you are going to get graduate in 2027 तो आप eligible हो CAT 2026 लिखने के लिए, right? कि CAT 2026 हो जाएगा in नवंबर 2026 में CAT का एग्जाम होगा, right? And then in August of 2027 आपका MBA जर्नी स्टार्ट होगा, राइट? तो अगर आपको 2027 में अपना एमबीए स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आपको कैट 26 लिखना पड़ेगा। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, 27 में ग्रेजुएट होने वाले हो, तो यू आर एलिजिबल टू राइट कैट 26, राइट? और अगर आप 26 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। तो दैट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी criteria, right? Doesn't matter which background you have, either you are from arts, commerce, BTech, whatever, you are eligible for writing CAT. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या कैट होता है, आपकी क्या रोड मैप होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? कि अगर हम कैट 26 प्लान करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि कैट एक्चुअली है क्या, राइट? और नो ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो कैट का टेस्ट होता है, दिस इज फॉर इट इज अ गेटवे टू आईएम्स एंड 100 प्लस B schools in India, right? So we can say that almost majority of the B schools in India they accept CAT score. तो अगर आप tier 1 tier 2 institution से अपना MBA plan करते हो तो then you have to go through the CAT, not only IIMs, right? If you are planning to do your MBA from IITs, right? IIT is there, from Delhi University like FMS is there, Delhi School of Business is there, right? Delhi School of Economics is there. तो FMS which comes under Delhi University, इसके लिए भी आपको CAT देना पड़ेगा, right? These are non-IIMs like MDI Gurgaon is there, IMT Ghaziabad is there, and there are so many over 100 plus B schools are there जो आपका CAT का score accept करते हैं, right? तो ये single CAT का paper will be your gateway to the top B schools of the country, ठीक है? It is a computer based test होता है ये, इसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स का और 3 सेक्शंस आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है? इसका ओवरव्यू हम देख रहे हैं तो 3 सेक्शंस, दीज 3 सेक्शंस इन्वॉल्व वीआरसी इज देयर, ठीक है? डीआईएलआर होता है इसमें, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 3 सेक्शन मिला के आपका कैट बनता है, ठीक है? फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स एंड फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है? तो लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो दिस इज अबाउट कैट। अब इन डेप्थ अपन समझते हैं कि एक्चुअली एक कैट जो होता है हाउ इट लुक लाइक्स, ठीक है? एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पेपर का स्ट्रक्चर होता है। लेट्स डू अंडरस्टैंड कि ये 2 आवर्स का जो पेपर रहता है अपना, ठीक है? एंड इट इज जनरली लास्ट संडे ऑफ द नवंबर, एवरी ईयर ये होता है जनरली
लास्ट संडे ऑफ द नवंबर में। सो लेट्स सी दिस इज हाउ अ कैट लुक लाइक्स, है ना। ये जो कैट का एग्जाम दिखता है ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको पैटर्न में। तो वी हैव थ्री सेक्शंस वीएआरसी। अब ये वीआरसी सेक्शन यहाँ पे क्या है, सेक्शनल टाइमिंग्स होता है दैट यू विल गेट 40 मिनट्स टू डू द वीआरसी सेक्शन। फिर आपको 40 मिनट्स और मिलते हैं फॉर डीआईएलआर सेक्शन। फिर अनदर 40 मिनट्स आपको मिलते हैं फॉर क्यूए के सेक्शन के लिए। तो टोटल यू हैव अ 2 आवर ऑफ अ टाइम। तो वो 2 आवर का टाइम ऐसा नहीं है कि यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस, दैट इज नॉट अलाउड हियर। यहाँ पे आपको 40 मिनट्स हर सेक्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन इसी ऑर्डर में आते हैं। यू डू नॉट हैव अ चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑल्सो, शफल भी नहीं आप कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट विद बीआरसी, 40 मिनट यू हैव टू स्पेंड। फिर 40 मिनट्स आपका डीआईएलआर लेता है, देन 40 मिनट्स आपका क्वांट लेता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, right? Or a penalty of for a wrong question you will get a penalty of 1 marks, or unattempted question के लिए you will not get any penalty। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, राइट, ऑप्शन बेस्ड होते हैं, प्लस टीटा क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं, राइट। टीटा क्वेश्चंस क्या होते हैं, टाइप इन द आंसर। यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ क्यूब बोर्ड यू हैव टू टाइप द फाइनल आंसर, ठीक है, पूरा मेथड नहीं, जस्ट फाइनल आंसर। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज ही रहते हैं, ठीक है, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं विच आर टीटा। तो टीटा का क्या रहता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट, इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। हाँ, इसके लिए यू देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -1। तो फॉर द टीटा क्वेश्चन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं वीआरसी की। तो वीआरसी में आपको मिलेगा 24 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो मतलब 72 मार्क्स आपको मिलेगा इन द वीआरसी सेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज कह सकते हो कि 72 मार्क्स अपने पास है इन द वीआरसी। अब वीआरसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो देयर इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स 16 क्वेश्चंस, राइट। So each question carries 3 marks, so around 48 मार्क्स आपका आरसी सेक्शन से आता है, एंड दीज 24 मार्क्स आपका आता है फ्रॉम द वीए सेक्शन। अब आरसी में यू हैव 4 पैसेजेस, ठीक है, एंड एवरी पैसेज कंटेन्स 4 क्वेश्चंस। देन वी हैव वीए। वीए में आप देखोगे देयर इज पैरा फॉर्मेशन, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी, ठीक है, पैरा जंबल, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली you will find. Then comes to DILR. So DILR is basically data interpretation is there. Like graph will be there, data in the form of graph, pie chart, bar graph, different type of graphs, right? And then you have to solve a, basically these are calculation intensive. Then logical reasoning. Logical reasoning involves like games tournament, puzzles are there, Venn diagrams are there. So it makes up 22 questions. तो 22 क्वेश्चन बोले तो यहाँ पे आपको 66 मार्क्स का DILR सेक्शन रहता है, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स, तो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, राइट, जो आपने अराउंड 9th-10th क्लास तक चीजें पढ़ी हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, रेशियोज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत एल्जेब्रा भी रहता है, एल्जेब्रा इसमें इन्वॉल्व रहता है, लाइक फंक्शंस, ग्राफ, ये इसमें लॉगरिदम, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, ये इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो टोटल 22 क्वेश्चंस आपके पास बनता है, एंड दिस अगेन 66, राइट। तो अगर हम टोटल पेपर को देखते हैं तो ये बनता है अपने पास 204 मार्क्स का। तो ओवरऑल कैट का जो एग्जाम है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइट चेंज, अगले साल हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज डीआईएलआर में अभी तक 20 क्वेश्चंस आते थे, और 2024 में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है, दैट्स नॉट अ रिजिड, चेंज हो सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। बट अभी करंटली अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर का कैट वी हैव 204 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, राइट। अब क्वेश्चन कम्स टू कि यार ये 204 मार्क्स में हाउ मच शुड आई स्कोर टू गेट अ, टू क्वालिफाई फॉर अ टॉप बी स्कूल, ठीक है। यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर होता है, नॉट अ परसेंटेज स्कोर, हियर परसेंटाइल स्कोर इज कैलकुलेटेड। तो टू गेट इनटू द कॉल फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल, कि अब यू शुड हैव अ टारगेट ऑफ लाइक 99 प्लस परसेंटाइल अगर मेरे को लेके आना है, तो कितना स्कोर अपने को करना है। तो अपने को ये समझ आ गया कि द लास्ट ईयर पेपर वाज ऑफ 204 मार्क्स, है ना, जिसमें यू हैव, दिस इज द ब्रेकअप ऑफ एवरी सेक्शन। तो दिस इज हाउ अ पेपर लुक्स लाइक, है ना। अब इस 204 में टू बी इन द टॉप
परसेंटाइल, तो अपने को कितना स्कोर करना चाहिए। तो आई शो यू कंपैरिजन, लास्ट ईयर का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का एक कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, इफ यू टेक अ लुक एट इट, है ना, अगर हम बात करते हैं, देखो 2024 का वी हैव अ स्कोर ऑफ 204 का स्कोर था। ठीक है, उससे पहले तक जो स्कोर था 2023 में इट इज 198। ठीक है, 2022 में भी 198 था, डीआईएलआर में 2020 क्वेश्चंस आता था। ठीक है, अब देखो, सी टू गेट अ 99.9 परसेंटाइल, राइट, तो 2024 में देखोगे कि दैट यू हैव टू गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड 127 का जो स्कोर है उस पे स्टूडेंट्स ने 99.9 स्कोर किया आउट ऑफ 204। ठीक है, देखो, टू गेट अ 99 परसेंटाइल यू हैव टू स्कोर जस्ट 95, इवन लेस देन 50%, है ना। अगर हम 204 का सिंपली 100% की भी बात करें तो 102, तो दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप 50% भी स्कोर कर लेते हो तो यू आर इन द 99 परसेंटाइल, राइट। अब 99.5 99.9 वहां पे थोड़ा सा फाइट होता है कि 99 से देखो 99.5 जाने में कितना गैप है। देन अगेन टू बी इन द 99.5 जाने में यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, देन सी 2023 में देखते हैं 198 का पेपर होता था, तो सी वहां पे टू गेट अ स्कोर ऑफ 99 यू जस्ट हैव टू स्कोर 76 मार्क्स, राइट। सच अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि एवरी ईयर द डिफिकल्टी लेवल वेरीज, राइट। अगर पेपर का लेवल इजी होगा तो यू विल बी सीइंग दैट हायर स्कोर, राइट, बट अगर पेपर डिफिकल्ट है तो यू विल सी दैट स्कोर ड्रॉप्स डाउन। तो सेम केस आप 2022 का स्कोर देखोगे, इट वाज ऑफ टोटल ऑफ 198 मार्क्स, वहां पर 99 परसेंटाइल लाने के लिए मेरे को कितना 84 स्कोर करना था। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर एक आइडिया लेके चले अपन, तो इफ आई हैव टू बी इन द टॉप 1%, राइट, तो मेरे को स्कोर करना पड़ेगा, मेरा टारगेट होना चाहिए कि आई हैव टू स्कोर लाइक 60-70% मेरे को मिनिमम टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज सी अगर आप सिंपली डेटा को भी कंपेयर करो तो अराउंड 50% से आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो, राइट। यू कैन पॉज एंड चेक द डेटा फॉर द डिफरेंट डिफरेंट परसेंटाइल्स, राइट, बट टू बी टू crack the top B schools like IIM, ABC, FMS, if you are planning, तो you have to be like ये आपका विंडो टारगेट मेरे को लेना पड़ेगा, nothing less than that, right? And specifically if you are from the BTech background, then the higher you score, the better chances you have. ठीक है, सो दिस इज अ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कंपैरिजन। तो अपने को एटलीस्ट पता स्टार्ट करने से पहले मालूम होना चाहिए कि क्या बार क्या रखना है। ठीक है, वेयर की प्रिपरेशन अगर करना है तो वेयर शुड टारगेट क्या होना चाहिए। So to be in the like 99.9 के रेंज में, I know कि out of the 204 I have to score around 120, like 60-70% का टारगेट अपने को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द परसेंटाइल एंड स्कोर। नाउ तो द पीपल हु आर स्टार्टिंग, इफ यू आर वेरी बिगिनर, तो अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यू नो नाउ कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, कैट होता क्या है, ठीक है, व्हाई आई हैव टू गिव कैट, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, स्कोर परसेंटाइल का अपने कंपैरिजन देख लिया, तो नाउ विल कम टू द प्रिपरेशन टाइमलाइन कि अब मैं कैट को अगर प्लान करता हूँ अभी से, राइट, लेट्स से वी आर इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली मान के चलते 12 to 13 मंथ्स का टाइम है। तो दिस इज लाइक द आइडियल टाइम। ठीक है, दिस इज द टाइम कि जहां पर आपके पास, आप इफ यू आर इन द फाइनल ईयर, इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो यू शुड स्टार्ट राइट नाउ, बिकॉज आपको कॉलेज भी मैनेज करने हैं, एग्जाम्स भी मैनेज करने हैं, राइट, सो दैट लास्ट में एकदम से सारा प्रेशर नहीं आए। तो वी द अर्ली यू स्टार्ट, राइट, द बेटर रिजल्ट यू विल गेट। तो अब अपना जो प्रिपरेशन है फॉर द बिगिनर स्टूडेंट विल डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फेजेस। तो पहला फेज आएगा जो अगर आप अब से स्टार्ट करते हो एंड टिल द डिसम्बर, दैट इज योर फाउंडेशन पार्ट्स। ठीक है, अब ये फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइक बेसिक्स ऑफ द क्वांट। अब बेसिक्स ऑफ द क्वांट क्यों जरूरी है, बिकॉज सी क्वांट इन्वॉल्व्स द टॉपिक लाइक परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, एवरेज, ये सारे टॉपिक समवेयर ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज वी हैव डन, right? So we just have to revise them. Quant के basics like calculation is involved, इन चीजों पे काम करना है, ज्योमेट्री इज देयर, है ना। तो
बेसिक्स जो है क्वांट के वो अपन इस टाइम पे काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कैट लेवल प्रॉब्लम्स पे जाके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, नो, दैट वोंट बेनिफिट यू। तो इफ आई एम अ बिगिनर, ठीक है, बिकॉज आप ये सारी चीजें वी हैव लाइक डन आफ्टर 10th और 12th हमने इन चीजों को छोड़ दिया था, राइट। तो व्हाट वी विल डू कि विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द बेसिक्स, राइट। तो बेसिक्स लाइक दीज टॉपिक, देन अगर आप अलजेब्रा में बात करो तो यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, right, functions, simple logarithms and these जो बेसिक टॉपिक्स हैं, राइट, इनको हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे, फंडामेंटल चीजों पे काम करना है, एकदम इन डेप्थ डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे नहीं जाना है, राइट, फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देन आपने देखा एज आई शो यू दैट कि कैट में VARC which involves like 16 questions हैं आपके पास, right, 16 questions are coming from the RC। तो RCs are of a good level, बहुत अच्छे लेवल की आरसीज यहाँ पर आती हैं, तो इट्स नॉट लाइक स्कूल लेवल आरसीज, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की आरसीज आती हैं। तो यू हैव टू हैव अ रीडिंग हैबिट, यू हैव यू स्टार्ट डेवलप द रीडिंग हैबिट, right, start with the easy material if you are interested in novels, articles, anything जो भी आपको attract करता है, you should develop the reading habits, right। तो reading habits पे should focus। then DI puzzles, like basic puzzles like seating arrangement, circular arrangement में आप, there is a table, 8 seats are there and you have to make people sit। अपने fundamentals के लिए you can solve the logical games like Sudoku is there, right? Kakuro is there. So these type of games which are used to develop the logical foundation, इन पे we can start। तो जो अपना पहला रहेगा फर्स्ट फेज रहेगा दैट इज फाउंडेशन। तो इस फेज में वील जस्ट वर्क ऑन आवर बेसिक्स, ठीक है। रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना है, नो नीड टू गो टू सॉल्व द आरसीज, वो अगले फेज में अपन करेंगे। इस फेज में वी जस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट, राइट। एंड वी एक आर्टिकल लिया, उस आर्टिकल को इन डेप्थ पढ़ा, समझा व्हाट द ऑथर वांट्स टू से एंड एवरीथिंग, बेसिक्स ऑफ क्वांट्स किया, डीआई पजल्स एंड ऑल दैट इज इन्वॉल्व्ड, राइट। तो ये अपना एक फाउंडेशन वाला फेज हो गया फॉर द बिगिनर पीपल। फिर द सेकंड फेज आएगा कि जहां पर विच स्टार्ट फ्रॉम लाइक जनवरी एंड टिल सितंबर, ठीक है। दिस इज द फेज जहां पर आपका एक्चुअल कैट जर्नी स्टार्ट होगा। तो इस जर्नी में वी विल कंप्लीट फोकस ऑन द सिलेबस, राइट, कि कैट का सिलेबस, स्पेसिफिकली क्वांट का सिलेबस इज क्वाइट ब्रॉड, तो वो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। देन आपको सेक्शनल टेस्ट पे आना है, every section का, like quant के particular, let us say we have done a topic on percentages, तो अपन एक उसका sectional test लगाएंगे, will record the progress कि कितना अपने को आया है, ठीक है। speed building पे focus करना है अपने को, because we have a crunch of time। एग्जाम में क्या है, just 40 minutes a section, तो आपके पास not more than 2 minutes to give a question, राइट। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो नॉट मोर देन 2 minutes पर क्वेश्चन आई कैन स्पेंड। तो वहां पर यू हैव टू बिल्ड वर्क ऑन योर स्पीड, ठीक है। स्पीड टेस्ट पे अपन काम करेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, टेस्ट देंगे, स्पीड बिल्डिंग करेंगे ओवरऑल। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स पे अपने को फोकस करना है, ठीक है, नॉट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ज्यादा फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपको है, राइट, तो यू वुड बी एबल टू क्रैक द प्रॉब्लम। बट अगर कॉन्सेप्ट अपने हिले हुए होंगे तो देन इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्योंकि अब आप यहाँ पर फेज वन में आपने फाउंडेशन बना लिया है, बेसिक्स आपको क्लियर हो गए हैं, चीजों पे आपने काम किया है, तो फेज टू विल बी स्मूथ फॉर यू, राइट, कि अब आपको जस्ट लेवल वन से लेवल टू पे खुद को लेके जाना है। तो टिल ओके, यहाँ पे इट शुड बी 2025 तक रहेगा ये, एंड यहाँ पे 26 रहेगा। स्लाइड चेंज हियर, इट इज 25 एंड 26 तक ये चलेगी कहानी, ठीक है। तो फेज वन अपना फाउंडेशन रहेगा, फेज टू में अपन क्या करेंगे कि जो अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे। देन कम्स द थर्ड फेज। तो ये जो थर्ड फेज रहेगा अपना, दैट इज मॉक टेस्ट, राइट। तो इस फेज में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने सीखा है उसका टेस्ट, राइट, एक्चुअल जो अपन ने सीखा है, जो समझा है, उसका टेस्ट होगा इन द एग्जाम, राइट।
तो व्हाट वी हैव डन, क्या हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हुई है या नहीं हुआ है, तो दिस इज अ बेसिकली चेक मार्क। तो मॉक टेस्ट विल कम टू द फुल, जो मॉक टेस्ट होंगे फ्रॉम अक्टूबर, अक्टूबर से लेके नवंबर तक टिल आर एग्जाम हमारा पूरा फोकस रहेगा मॉक टेस्ट पे, राइट। दो फेज 2 में वी विल इंट्रोड्यूस सम मॉक्स, है ना, सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ एक दो मॉक्स यू कैन स्टार्ट लाइक फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स और सितंबर ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, बट फेज 3 इज टोटली अपार्ट की, जहां पर अपना फोकस रहेगा फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है। मॉक देना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है, एंड रिवीजन। मॉक, स्ट्रैटेजी, रिवीजन। मॉक दिया, अपना स्ट्रैटेजी टेस्ट किया कि ओके विद दिस स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग इनटू द एग्जाम, ठीक है, उसको टेस्ट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, राइट, एंड रिवीजन। तो ये थर्ड फेज। तो बेसिकली इफ आई एम प्लानिंग टुडे कि भाई मेरे को कैट 2026 अपीयर करना है, तो आई हैव टू डिवाइड इट इनटू द दीज थ्री फेजेस। तो ये थ्री इफ यू गो विद अ प्लान, राइट, तो इट वॉन्ट बी मच डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे को देखो 100% स्कोर नहीं करना है, राइट। इफ आई एम एबल टू स्कोर 60-70%, आई गेट अ decent score, right? So this is a preparation timeline. Now, if we come to like VRC, if I am a beginner and I have to start preparing, let's see what can I do for VRC में क्या करना है, ठीक है। डोंट टेक इट एज लाइक अनदर, आप इसको एज अ बर्डन नहीं लगना चाहिए। तो स्टार्ट विद लाइक रीडिंग 1-2 आरसी पैसेजेस, ठीक है। आप एक एक दो दो पैसेजेस से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। विच एवर इंटरेस्ट यू, कोई भी पैसेजेस आप पढ़ सकते हो, बी इट फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट रीडिंग द आरसी पैसेजेस, ठीक है। ओवर द टाइम get we will let you know कि क्या sources आपके पास रहेंगे, right, like Aeon is there, or you can newspaper editorials you can go for, so there are plenty of resources, right. So start with 1 to 2 RCs is there, then practice para jumbles, para summary, ठीक है, कि para jumbles, para summary, इसका start practicing just 1 to 2 question or 2 to 3 questions a day, not much in the beginning, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट, एडिटोरियल्स पढ़ने का हैबिट, लाइक द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स आर देयर, उनके एडिटोरियल्स को यू कैन गो थ्रू, राइट। देन फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, राइट, ये दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज अगर आप देखो तो आरसी मीन्स लाइक इट्स नॉट ओनली इंक्लूडिंग द रीडिंग, देयर इज अ वर्ड कॉम्प्रिहेंशन, कि व्हाट यू हैव कॉम्प्रीहेंडेड फ्रॉम द पैसेज, वो जरूरी है। तो जो भी आप पैसेज को पढ़ रहे हो, राइट, सो आफ्टर रीडिंग इट ट्राई टू समराइज इट, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, कि आपको क्या समझ आए, व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, ठीक है, व्हाट इज हिज इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग दिस पैसेज एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे फोकस ऑन दिस पार्ट, लाइक कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना है। रीडिंग वी नोस, राइट, वी आर डूइंग इट since our school time, but we should focus more on comprehension aspect. That is how we should start with the VRC. Right? Then it comes to next is the DILR. Three sections we have. So DILR, how we should start that? Start practicing puzzles, right? Then arrangements, Venn diagrams. Start with the easier. एकदम से बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सेट्स नहीं उठा लेने, लाइक इजियर पजल्स यू कैन दो, पजल्स उठा सकते हो, लाइक बॉक्स अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट, लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठाना है, रेक्टेंगुलर टेबल में बिठाना है, लाइक दीज काइंड ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम के इजियर क्वेश्चंस। देन लेटर ऑन जैसे जैसे आप समझ जाओगे तो फिर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाना है, ठीक है। डीआई के सेट्स, लाइक स्टार्ट सॉल्विंग द डीआई सेट्स, वट एवर मटेरियल यू आर रेफरिंग, ठीक है, टेक अ बुक और सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लाइक tables, graph, caselets are very very important, these type of DI sets. तो DI sets start solving, ठीक है, बिकॉज DI में इट इज मोर ऑफ अ कैलकुलेशन। तो आपको डेटा देखना है, उसको इंटरप्रेट करना है, देन उसके बेसिस पे यू विल बी गेटिंग 4-5 क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। देन ट्राई टू सॉल्व द LRDI सेट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन योर ओन, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं देखना, बिकॉज LRDI इज समथिंग की जस्ट अ पजल। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हो तो उसको आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, इट इज नॉट समथिंग कि बिल्कुल नहीं आएगा आपको। ट्राई टू सॉल्व दो सेट्स, मे बी आप उसको 50-60% ही सॉल्व कर पाओ, डजेंट मैटर, बट सॉल्व। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि कैट में एक्चुअली किस लेवल का LRDI पूछा जाता है, राइट। तो प्रीवियस ईयर का सोर्स इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ऑन द नेट। तो आप सेट निकालो,
sit with a pen and paper and try to solve it on your own. Answer before getting to the solution, आप उसके ऊपर दिमाग लगाओ, ठीक है. इनिशियली हो सकता है ज्यादा टाइम आपको लगे, बट इनिशियली टाइम पे फोकस ना करके ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. देन आप उसका सोल्यूशन देख के कर सकते हो वेरीफाई, ठीक है. फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड लॉजिकल, बेसिकली अपने को अपना लॉजिकल अप्रोच पे फोकस करना है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस रखना है एंड लॉजिकल अप्रोच, कि हाउ यू आर सॉल्विंग द सेट, ठीक है. तो लॉजिकल अप्रोच इज समथिंग जो ग्रेजुअली आपका इंप्रूव होगा. इट्स नॉट समथिंग कि 2-4 दिन में इंप्रूव हो जाएगा, राइट. बिकॉज एलआर इज समथिंग वी आर ऑलमोस्ट फ्रेश टू. जैसे क्वांट इज समथिंग कि हमने किया हुआ है, राइट. ऐसा कुछ ना कुछ अपने को आइडिया रहता है कि इक्वेशन बना लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे. बट लॉजिक इज समथिंग कि बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ फ्रेश, एकदम नया चीज होता है. तो अंडरस्टैंड दी अप्रोच. तो अगर आप लॉजिकल अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखोगे, तो ओवर द टाइम आपका इस पे डीआईएलआर पे डेफिनेटली कमांड बनेगा, राइट. Then we have quant strategy, another very this is a section which involves mathematics also and logic also, a mix of both. तो जब आप क्वांट की बात करो तो स्टार्ट विद द एरिथमेटिक, बिकॉज एरिथमेटिक का वेटेज इज लाइक 40%. पूरे पेपर में 40% का वेटेज होता है अराउंड. यू कैन एक्सपेक्ट कि इफ देयर आर 22 क्वेश्चंस कमिंग, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस के बीच आप मान के चलो कि एरिथमेटिक होगा. And arithmetic involves the mathematics which you are familiar with. Percentages, profit loss, time work, time speed distance, averages, mixtures. We are familiar to these topics. है ना. तो start with the arithmetic first. And arithmetic आपको एक तो क्या है, because you are already familiar with these topic, तो नया नहीं लगेगा. And the questions in arithmetic are interesting. जब आप सीखोगे कि ओके कि अगर हम लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं arithmetic को, तो you will start loving the quantitative aptitude, right. Then after that आप algebra, geometry and numbers पे जाओ, ठीक है. Second is weightage is algebra, right. Algebra has a good weightage, like between 30 to 35% weightage algebra का है. मतलब arithmetic algebra ये दोनों मिलाकर के they will give you approximately 16 to 17 क्वेश्चन देगा out of 22, right. तो just imagine कि कितना ज्यादा weightage है इन दोनों टॉपिक का, राइट. तो स्टार्ट विद द एरिथमेटिक एल्जेब्रा, फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, कि जब आप बेसिक्स कर रहे हो फेज 1 में, तो आप एल्जेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स में तोड़ना है, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस का बेसिक बेसिक चीजें अपने को समझ लेना है, राइट. क्योंकि लगभग आपके पास 16-17 क्वेश्चंस होंगे जो एरिथमेटिक एल्जेब्रा से मिला के बनेंगे, ठीक है. तो देन यू हैव ज्योमेट्री, नंबर्स. तो ज्योमेट्री इज समथिंग व्हिच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थ्योरम्स. तो ये सारी थ्योरम्स आपको एक बार ब्रश अप करनी पड़ेंगी, राइट. बिकॉज आपने पढ़ा है समवेयर टिल योर हाई स्कूल, हमने ज्योमेट्री पढ़ा है. थोड़ा बहुत नंबर्स का भी बेसिक आइडिया है, फैक्टर्स का, एलसीएम, एचसीएफ का. तो अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना है एंड देन फिर उसको कैट के लेवल पे लेके आना है, राइट. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एरिथमेटिक से, और पैरेलली थोड़ा थोड़ा टाइम एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स में भी लगाएंगे इन द बिगनिंग फेज, राइट. फिर फॉर्मूलाज, परसेंटेज, रेशियोज, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करना है. एंड मेक अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग लाइक 15 से 20 क्वेश्चन. अगर आप अभी से मेक अ हैबिट कि धीरे धीरे आप क्या करोगे, 15-20 क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस जब आप सॉल्व करने लगोगे, तो यू विल गेट द आइडिया कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कि अरिथमेटिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. तो ऑन अ डेली बेसिस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लाइक कि अगर मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लूं एक दिन में, दैट वॉन्ट बेनिफिट यू उतना, कि अगर आप 15-20 क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस उसको पार्ट्स में तोड़ के करना स्टार्ट करो, दैट विल गिव यू बेटर आउटपुट, राइट. सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके. तो अब if we make a daily routine कि अभी if I'm starting from like tomorrow onwards, then see, this is how it may be, it may vary for the people. आप अपने time के accordingly you can, if you are college going or if you are in a job, right, or if you are in a final year, तो accordingly आपके पास जो time है available, आप उसके हिसाब से इसको customize कर सकते हो, right. तो quant is like if I dedicate 2 hours for the quant, for the concepts building, problem solving, ठीक है. 1 hour for the DILR, एक DI set करना है, एक puzzle करना है. 1 hour for VRC, 1 RC and VA, right. So this is how you can plan a routine, राइट. एंड रिवीजन इज द किंग. तो ऐसा नहीं है कि लेट्स से कि मैंने रेशियो पढ़ लिया एंड देन मैं उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चन लाइक 2-3 वीक्स लेटर.
उसका बेनिफिट नहीं होगा, तो कीप अ सेपरेट टाइम कि जहां पर आप रिवीजन के लिए रखो, एरर एनालिसिस लाइक वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक, राइट, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, उस चीज पे वी कैन फोकस. तो दैट इज हाउ अ डेली रूटीन यू कैन मेक. ठीक है. If you are a very beginner, तो then for you it's an advice that start early. Right? जितना जल्दी आप start करोगे, right? Just imagine that a person starting in the month of September 2025 and there is a student who will be starting maybe next year in the June July. तो आप already कितना आगे हो उनसे, right? So early start करोगे तो that will pay out. एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, अभी सोचा कि भी हवा पूरा एक साल पड़ा है, पढ़ लेंगे आराम से. नो. देखो, टू एक्सेल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कैट, जैट एंड स्नैप एंड एग्जाम, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यहाँ पे मान के चलो कि कंसिस्टेंसी इज द की, राइट. अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, आपने जो चीज कल किया है उसको भी आज आपने जस्ट रिकैप कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है, उसका एनालिसिस कर लिया, दैट ऑल्सो काउंट्स. तो ऐसा है कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट. मुझे कुछ टाइम दिन का निकालना है कि ओके आई हैव टू इन्वेस्ट, राइट. टेक द टाइम एज एन इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न आपको एग्जाम में मिलेगा. ठीक है. देन सेकेंड, वेरी अ लॉट ऑफ प्रेशर्स टू दैट कि वो सीधा चले जाते हैं एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस पे विदाउट वर्किंग ऑन योर बेसिक्स, राइट. तो देखो, भागने से पहले यू शुड लर्न walking, right? तो build basics. That means first start walking. तो धीरे धीरे then you will go to पेस पे. ठीक है. मॉक्स पे एकदम से नहीं जाना है. फर्स्ट बिल्ड योर बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्लियर करो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, देन मॉक्स पे जाओ. अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि मॉक में आप बिना कुछ किए जाओगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव स्कोर और बहुत कम स्कोर आएगा, परसेंटाइल बहुत कम आएगा एंड यू विल फील डीमोटिवेटेड. ठीक है. 3-4 मॉक ऐसे ही आते कि तो यू विल फील लाइक कि मेरे से नहीं हो, राइट. तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि बेसिक्स पे काम करना है. अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग, राइट. तो प्रोग्रेस को ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर आई एम लैकिंग, मेरी वीकनेस क्या है, एवरीथिंग तभी आपको पता चलेगा. ठीक है. कैट जो है दैट इज द गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट. आप अपने 40 मिनट्स के मेरे पास सेक्शन है, 22-24 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो हाउ आई विल बी मैनेजिंग द टाइम, राइट. बिकॉज कैट इज अ सच एग्जाम की जहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाना इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. रीजन, देयर इज अ टाइम लिमिट. तो उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को. तो टाइम मैनेजमेंट इज द की रोल कि कौन से क्वेश्चन आई एम सिलेक्टिंग, विच सेट आई नो कि ओके दिस सेट आई शुड स्किप, otherwise it will take more time, right. And then stay calm and confident, right. तो बहुत सारे लोगों का ये misconception है that okay we are that non-science students, right, we are from commerce, we are from arts, so we are not, cat is not for us, right. So that is not the case. So if you plan right now, stay calm, confident, focus, go with the strategy, so you can crack the cat, right. I don't have to score 100%. To get 99, if you are able to score more than 50%, you are already among the top 1%, right. So plan accordingly, right. So this is how your cat journey should start. तो आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट एक्चुअली कैट डिमांड्स, राइट. एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, मेरा स्कोर कितना होना चाहिए, मैं कितने के लिए टारगेट कर रहा हूँ, राइट. व्हाट इज द सिलेबस एंड एवरीथिंग. तो in this session, we have discussed that for a beginner, how I should plan my CAT 2026 journey, right? So I hope you get an idea. So in the upcoming sessions, we'll come up with a more videos regarding the syllabus and what colleges are there according to your profile and everything. So in the upcoming sessions, you will get more information, right? So do like and subscribe the session and share it with your friends who are planning for the CAT 2026. And if you have any query, so you can comment and we'll revert back. Thanks for watching the session. See you in the next one.